Okay, now let us start with various types of force acting on various parts. Okay, is the joint visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, so I will put a pen on the parts and you will be responding me what are these different kinds of parts or what are the names which we have given. Okay, the first thing which I want to know from you is this one. Okay, what is this? What is this part called? Rod. Rod. Yes, and what is Rod. this side? Rod. Rod. Yes, Rod. again rod. These two rods on two sides will be acting as a connectors between two different parts. Okay, then okay, let me disassemble this first so it will be easy for you to recognize. Okay, so we have seen rod. What will be this part? Spigot. Yes, this is a spigot. Then what is this part which is something extruded on this top? This Our is collar. spigot collar. Yes. Then what is this one? Socket. Socket. Yes, it is socket. And what is this? Socket collar. Socket. Socket collar. And simple, what is this? Quarter. 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 Okay, any doubts in the parts of the joint? Yes. No, sir. Any doubts No, in the sir. parts of joint? No, sir. Let us analyze each of them. No, sir. Let us analyze each of them. Now, the first part we have seen, the first part we have seen is the rod. The first part is rod. Is it correct? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So on the rod, what kind of force will be acting? Tensile. 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 Yes. Because Tensile. we know that the force will be like this on this side. Okay, so there will be a tensile load on this particular area. So if I now disassemble this and I will show you like this, so this is the area which will be having the tensile load. Any doubts? No, sir. Okay, so what will be the area we will consider? Circle. Pi by 4 d square. Yes, it is a circle, that will be pi by 4 d square. Any doubts? No, sir. So we know that the first part is the rod which will be subjected to which load? Tensile. Tensile load. So for tensile load, what will be the stress? P by A. Yes, so I will write sigma T is equal to P by A. Sigma T because it is tensile stress. So sigma T will be equal to P by A. And in place of A, I will write what? Pi by 4 D Pi by square. 4 D square. So what is the unknown? What will be unknown? Sigma T is known to me because I will selecting Diameter the of material. rod. Diameter of Yes, rod. diameter of rod. So by taking the failure of the rod in the tensile condition, I have found out the dimension of this rod. So should I proceed further? Yes, sir. Next part is this one. Socket. Spigot. Spigot है confirm. फिर से सोच लो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I got it. So this part is known as the spigot. ठीक है, अब spigot पे भी देखो लोड कैसे आ रहा है. लोड हम लोग इस तरीके खींचेंगे, बराबर है, away from the center. Yes, sir. Yes, sir. So which type of load will be acting? Tensile. Tensile load. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? Tensile load रहेगा. No, sir. Doubt me. ठीक है, नहीं है डाउट. From where it will break? Minimum cross section. From the minimum cross section area. In this entire Slot rod, में. where is the minimum cross section area? स्लॉट है सर उसके साइड्स Dot. में सर. मतलब यहाँ पर this is the minimum cross section area where I have put the chalk. Yes, sir. Okay? Yes, sir. तो यहाँ से मेरा कंपोनेंट टूट जाएगा. टूटेगा नहीं टूटेगा? टूटेगा सर. टूटेगा. टूटेगा. जब ये पार्ट टूट गया यहाँ से, सपोज ये पार्ट यहाँ से टूटा, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा सामने से? अगर मैं इसका ये दिखूं तो क्या दिखेगा मुझे? सेमी सर्कल दिखेगा ना. सेमी सर्कल दिखेगा. इज दिस करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ओके लेट मी मेक इट येलो. ओके, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये स्लॉट का पार्ट है.
येलो वाला देखो, अगेन अगेन आई विल टेक इट लाइक दिस। सर वो तो सर गैप है ना सर, वो थोड़ी दिखने वाला है। यस, गैप है, वहां पर हवा है, कुछ नहीं है वहां, तो मटेरियल रहेगा क्या वहां पर? तो पीछे का दिखेगा ना। इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं दिखेगा यहाँ से सर। टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, बराबर सेंटर से। देखो जो तुम बात करोगे कि वो टूटेगा यहाँ से, देखो मेरी बात समझो अच्छे से। अगर इस पॉइंट से टूटता है, इस पॉइंट से एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, तब वो दिखेगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल है राइट साइड में, है या नहीं है? यस सर। यस सर। बट अभी हमने क्या बोले, इट विल ब्रेक एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, बराबर। यस सर। तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सिंपल ना, यहाँ पर कोई मटेरियल है क्या? ये पार्ट में कोई मटेरियल है? नहीं नो सर। तो हमको क्या दिखेगा? हमको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, देखो यहाँ का दिखेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये वाला पार्ट भी दिखेगा, ये वाला कर्व पोर्शन ऑन दिस साइड। यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी, अब मैं ऐसा करूँ इसको, अगर मैं इसको चेंज करूँ अभी इधर, तो मुझे क्या दिखेगा एक्चुअली? दिस टाइप ऑफ पार्ट विच इज नॉट अ सेमी सर्कल बट इट इज सर्कुलर पार्ट, और यहाँ पर भी एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द एरिया? व्हाट विल बी एरिया विच इज देयर? सर ऑरेंज येलो और सर सर्कल के एरिया में से और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। परफेक्ट आंसर। अगर ये पूरे सर्कल में से, अगर मैं रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, तो मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यस सर। हो गया। तो माय आंसर विल बी, यस, माय आंसर विल बी एरिया ऑफ सर्कल, दैट विल बी हाउ मच? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। सब लोग गलत बोल रहे हो। पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। D2 square, that's the correct answer, because this is what, this is which part? कौन सा पार्ट? Spigot। स्पाइगॉट है। स्पाइगॉट का डायमीटर हमने क्या लिया है? D2। D2। So it will be pi by 4 D2 square, that is the circle, बराबर, minus rectangle, what will be rectangle's area? हाँ, तो क्या आएगा? फाइनल आंसर बताओ। L into D तो रहता ही है, बट इसमें क्या रहेगा इस केस के हिसाब से? पाई बाय 4 d2 स्क्वायर माइनस d2 is to thickness of the D2 into thickness of the pin और बराबर एग्जैक्टली सेम, करेक्ट आंसर। सी दिस, देखो ये सर्कल का एरिया पाई बाय 4 D2 स्क्वायर आएगा, इसको किसी को डाउट है? नो सर। एरिया ऑफ दिस एंटायर सर्कल विल बी पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, सॉरी, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। अब उसमें से मुझे रेक्टेंगल माइनस करना है, तो रेक्टेंगल का पहले तो ये लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिस साइड? D2 बराबर, ये पूरा डायमीटर ये, तो इट विल बी D2। एंड व्हाट विल बी दिस विड्थ? ये विड्थ कितनी होगी? सामने से आपको दिख रही है ये वाली विड्थ, ये कितना होगा? T। यहाँ पर ये द स्लॉट थिकनेस इज T। सो व्हाट विल बी द आंसर? फाइनल आंसर बोलो फटाफट। व्हाट विल बी दिस एरिया, एंटायर एरिया? D2 into T। Pi by 4 D2 square minus D2 into T। Perfect answer. It will be pi by 4 into D2 square minus D2 into T। डाउट है किसी को? नो सर। Now this is my component। अब यहाँ पर क्या जाएगा इसके अंदर? क्वार्टर। ठीक है, चलो क्वार्टर को डाल दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको खींचूंगा तो क्वार्टर कौन से साइड में प्रेशर अप्लाई करेगा? राइट साइड से। राइट साइड में, बराबर, मतलब इस वाले पार्ट पे प्रेशर अप्लाई होगा। यस सर। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वाला दिख रहा है? यस सर। यस। तो ये क्या हो रहा है? प्रेस हो रहा है। यस सर। यस सर। अब प्रेस हुआ मतलब कौन सा स्ट्रेस आ गया? क्रशिंग। ठीक है, कंप्रेसिव का क्रशिंग स्ट्रेस आ गया। आया कि नहीं आया? आया सर। आने दो। ठीक है, आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा सी इज इक्वल टू पी बाई एरिया। सी तो चलो मेरे को मालूम है, मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया। पी मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा। व्हाट विल बी एरिया? जल्दी बताओ, एरिया क्या रहेगा? D2 into T। हाउ यू गॉट D2 into T? सर सर्कल का डायमीटर और थिकनेस। बराबर। तो हमने क्या बोले? दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, बराबर। ये रेक्टेंगल का एरिया प्रेस होगा। सो रेक्टेंगल का ये जो विड्थ है, ये जो हाइट है, सॉरी, दैट इज D2, बराबर, क्योंकि डायमीटर ऑफ स्पाइगॉट है। एंड दिस थिकनेस इज T। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज D2 into T। डाउट है किसी को कुछ? नो सर। आगे क्या होगा? शेयर। तो शेयर में विच पार्ट विल बी इफेक्टेड? सर वो एंड में थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अगेन सर D2 into A। सर D2 into A। D2 into, how you got? 2 times। हाँ, 2 times, that is correct answer, 2 times। चलो देखेंगे कैसे होगा। नो सर। अब देखो क्या होगा।
अब ये जो है ये प्रेस होते जा रहा है कंटिन्यूसली, ये वाला पार्ट जो है ये इसको कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा है, कौन से साइड को, इस साइड को कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा है। अब प्रेस करते करते क्या होगा, ये जो साइड है ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। ठीक है, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले ये प्रेस हो रहा था सिर्फ, पहले सिर्फ ये प्रेस हो रहा था। अब प्रेस होने के बाद अगर मैं यहाँ पर फोर्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। जब ये पार्ट बाहर आएगा तो कौन से सरफेस को रब करेगा, ये वाले सरफेस को रब करेगा, ये तरफ जो है इसके पैरेलल। यस सर। ठीक है, तो वो सरफेस का क्या होगा, वो सरफेस का ये कितना है, ये आपने देखो हमारे नॉमेनक्लेचर में इसको कितना लिए, ये साइड हमने लिया हुआ है ए। सर। अगर नॉमेनक्लेचर तुम देखोगे तो हमने ये साइड को लिया है ए। सो दिस ए, और ये हाइट कितनी है इसकी, अभी हमने देखे, दिस इज डायमीटर ऑफ D2। पाइवॉट, दैट इज D2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन दिस साइड विल बी A into D2, जो ये बाहर घिसते हुए आएगा। ठीक है, ये बाहर आया और ये तरफ से भी घिसते हुए बाहर आ रहा है, सो इट विल बी 2 into A into D2। डाउट है किसी को? नो सर। एकदम परफेक्ट समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट वी कंसीडर्ड एज रॉड। रॉड, उसके कौन सा स्ट्रेस रहेगा, टेंसाइल। टेंसाइल। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या कंसीडर किए, स्पाइगोट। पाइवॉट, उसके कौन से स्ट्रेस है, टेंसाइल, क्रशिंग टेंसाइल, और शियर। शियर आएगा नहीं आएगा, बेंडिंग आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नो सर, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रीजन चाहिए मुझे, क्यों नहीं आएगा? इसके परपेंडिकुलर में Sir, कोई what- फोर्स लोड एक्टिंग कर रहा है। बिकॉज बेंडिंग तब आता है जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है, यहाँ पर फोर्स कैसा है, अलोंग द एक्सिस है, सो बेंडिंग आने का सवाल नहीं होता है, सो देयर विल बी नो बेंडिंग। तो वी हैव डिजाइन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट हमारे डिजाइन हो गए, पहला हो गया रॉड, दूसरा हो गया स्पाइगोट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? स्पाइगोट कॉलर। स्पाइगोट कॉलर। जस्ट मेरे को बताना कौन सा स्ट्रेस आएगा। ठीक है, दिस इज पार्ट, क्रशिंग। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? अब ये जो पार्ट है, देखो मैं अपने हाथ से इसको प्रेस कर रहा हूँ, काफी प्रेस किया मैंने, कंटिन्यूसली प्रेस हो रहा है, तो कौन सा एरिया प्रेस होगा एज फार एज दिस इज कंसर्न? सर कॉलर वाला। कॉलर वाला। शुड आई कलर दिस पार्ट, ये वाला पार्ट प्रेस होगा। यस सर। यस सर। इससे Yes, sir. कौन सा स्ट्रेस आ रहा है? कॉम्प्रेशन आया। कंप्रेशन। ये जो पार्ट है इसको और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या है, इट इज कॉम्प्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल लोडिंग, तो मैं इसको कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहा हूँ। देखिए कॉम्प्रेसिव लोड अगर लगाया तो ये प्रेस होगा नहीं होगा? यस सर। प्रेस होने पर ये वाला एरिया प्रेस होगा, ये वाला एरिया, यस सर। ये एरिया का एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया फॉर दिस? क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 D3 स्क्वायर। pi by Diameter 4 of collar. d3 square, pi by 4 d3 square is the outer diameter और outer circle area, but ये पूरा सर्कल प्रेस नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही पार्ट प्रेस हो रहा है, so it will be pi by 4 d3 square minus pi by 4 D2 स्क्वायर। D2 स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कौन सा स्ट्रेस आ रहा है अभी स्पाइगोट कॉलर पे? कंप्रेशन। कॉम्प्रेशन, और जहाँ कॉम्प्रेशन आता है वहाँ और क्या आता है? शियर। अब ये कंटिन्यूसली मैंने प्रेस किया, ये प्रेस कंटिन्यूसली करते जा रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्रेशन आ रही है हमने देखे। अब जैसे ही लोड बढ़ेगा क्या होगा, ये पूरी रिंग बाहर आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? यस सर। यस सर। ये रिंग जब बाहर आएगी, तो किस सरफेस को रफ करते हुए बाहर आएगी? रॉड को। यस, इट विल बी दिस सरफेस, बराबर, ये सरफेस को रफ करते हुए बाहर आएगी। ठीक है, ये सरफेस को रफ करते हुए बाहर यस सर। सो व्हाट इज दिस सरफेस एरिया? पाई D2 into T1। So what is this? This is circumference. Circumference है या नहीं है? यस सर, सरकमफ्रेंस। Circumference is what? Pi into D. यस सर, पाई इनटू डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, pi into D2 बराबर pi into D2, यस सर। और ये थिकनेस कितना हमने लिया है, ये वाला थिकनेस T1। आई थिंक T1। it will be pi D2 into T1 बराबर
Yes, sir. हो गया, मतलब ये रिंग जब बाहर आएगा तो ये वाले सरफेस को रब करते हुए बाहर आएगा, और कितना रब करेगा? सिर्फ ये सर्कमफ्रेंस दैट इज 5d2 into T1 आ रहा है। Yes.